Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. So finally today, students of class 6th, I am here with the last chapter of NCERT syllabus, Science, chapter number 11, Air Around Us. So finally we have reached to the last chapter of class 6th. I hope you have understood all my previous videos, and in this video I am going to talk about the composition of air, the availability of oxygen to plants and animals living in soil and water, and how is the oxygen in the atmosphere replaced. So these are few points that I am going to discuss in this video. Before I start the video, I request everyone who is watching this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now without wasting time, get ready with your paper and pen and let's start. So students, in the previous chapters we have studied that all living things require air, right? So let's talk about what is air. So air is a vital part. That means it is very important part for the survival. It is invisible and yet it is very essential, like a blanket all around the earth. The atmosphere supports life, and the atmosphere is an invisible gaseous medium that surrounds the earth. So next question comes in our mind is, where is this air present? कहाँ पे है ये air बच्चों? The answer is everywhere, right? हवा कहाँ है? सब जगह present है. Yes or no? So the thin blanket of air that surround the earth's surface is called the atmosphere. Okay? जो हवा है that is उसको हम बोलेंगे atmosphere. इसी atmosphere को बच्चों हम different layers में divide करेंगे, different spheres में divide करेंगे. Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. These all spheres you know and you have already studied about these spheres in your geography chapters, right? So these are the different layers of atmosphere. It is named differently, okay, depending upon the height from the earth. So the first is troposphere. Next comes the stratosphere, mesosphere, thermosphere, and the last is exosphere. Okay, so what is atmosphere? Atmosphere is a thin blanket of air that is surrounding the earth's surface. Okay, ये पूरा जो earth surface को cover कर रहा है, इसी blanket को हम बोल रहे हैं atmosphere. Okay, now let's talk about the composition of air. हमने बोल दिया atmosphere है, atmosphere मतलब air है, तो composition क्या है, कौन सी air है, क्या है, let's see. The two major gases which are present in the air is nitrogen and oxygen. And the remaining portion, सिर्फ यही दो gases तो नहीं है, उसके अलावा भी बाकी gases हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या हैं? The remaining portion contains mixture of different gases where carbon dioxide is also involved, okay, included. So, mixture of different gases, water vapor, dust and smoke. This is the other remaining portion. The two major gases is the nitrogen and oxygen. So let's talk about water vapor. ये क्या है? ये other component है, right? So ये कितना percent है? It is only 0.25%. ये total का water vapor का जो हमारा composition है वो है 0.25%. See, when air comes in contact with a cool surface, it's condensed and a drop of water you can see on the cool surface. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर जिसमें एकदम ठंडा पानी है या फिर उसमें आइस डाल दो, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट यू सी इज दिस ड्रॉपलेट्स, राइट? You can see this drops of water. This is nothing, just because of the condensation we can see these drops of water outside the glass surface. Okay, then the water vapor are very important for water cycle. You all know about water cycle. हमारे atmosphere में ये water cycle continuously take place होता रहता है. यस और नो? यहाँ से क्या होता है, वाटर इवापोरेट होता है, देन कंडेंस होकर क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन
एंड देन अगेन रेन के फॉर्म में वो नीचे आता है. यस, तो ये वाटर क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है ना इन अ फॉर्म ऑफ साइकिल. So it is called as water cycle. For this, water vapor plays a very important role. Okay, vapor के form में जा रहा है ना ऊपर. So water vapor plays a very important role in the functioning or in the working of water cycle. Now we will talk about the main composition, that is the oxygen. Oxygen is 20.9% in the total air. Oxygen का composition is 20.9%. And as we all know, it is very important for respiration. Respiration मतलब क्या है, हम breathing करते हैं ना, breathe in breathe out करते हैं, that is itself is respiration. And I hope you all know that plants also respire. And during the respiration process, oxygen लेते हैं plants, yes, और क्या देते हैं, carbon dioxide. I am talking about respiration, okay? Respiration में plants भी carbon dioxide देते हैं बाहर, okay? They expel कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट लाइक अस. ओके, जैसे हम ब्रीदिंग के वक्त, रेस्पिरेशन के वक्त CO2 गैस एक्सेल करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं. सो ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन. देन द सेकेंड पॉइंट इज फॉर बर्निंग. फॉर बर्निंग ऑक्सीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बर्निंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा. सो ऑक्सीजन इज अ गैस विच सपोर्ट्स बर्निंग. ओके, सो ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. तो ये हो गया मेन कंपोजिशन हमारा ऑक्सीजन. और इससे भी ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट कंपोजिशन हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, हमारे एयर में जो प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन. यस, सो नाइट्रोजन इज 78%. देखो कितना ज्यादा है, इसका परसेंटेज कितना ज्यादा है, 78% है. एंड इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ DNA एंड RNA. DNA RNA क्या है, ये हमारी बॉडी में क्या है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं. ओके, फ्रॉम मदर फ्रॉम फादर दे आर कैरिंग द जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से हमारी आईज या तो हमारे पापा से मैच करेगी या तो किसी भी पेरेंट्स से मैच करेगी, हमारे हेयर के कलर मैच करेंगे. तो जो भी क्वालिटीज हमको पेरेंट्स और मदर से मिलती है, ओके, सो ये DNA और RNA कैरी करते हैं, जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं. सो DNA RNA का एक एसेंशियल पार्ट है हमारा नाइट्रोजन. देन सेकेंड, इट इज एकदम उल्टा है ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग एंड नाइट्रोजन क्या करता है, बर्निंग को स्टॉप करता है. यू कैन सी दिस फायर एक्सटिंग्विशर. यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, स्प्रे कर रहा है ना, तो इसमें नाइट्रोजन गैस है. तो नाइट्रोजन गैस की वजह से क्या होगा, ये बर्निंग स्टॉप हो जाएगा. सो नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. देन द थर्ड इंपॉर्टेंट point for nitrogen is it helps in plant growth. You know this leguminous plants. ओके, लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होते हैं, ये नोड्यूल्स रहते हैं ना, रूट नोड्यूल्स, जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं और प्लांट उसे यूज करता है. और फिर हम अगर प्लांट को कंज्यूम करते हैं तो हम तक वो नाइट्रोजन पहुंच जाता है. ओके, सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर वी कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन. देन कम्स द अनदर इंपॉर्टेंट गैस. भले ही उसका परसेंटेज कम है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली 0.03%, बट इट इज एन एसेंशियल गैस. ओके, सो व्हाट इज द यूसेज, लेट्स सी. Plants and animals, we know when we are respiring, when animals are respiring, when plants are respiring, they are giving out carbon dioxide. Just now I explained to you, bacha. See, you can see in this picture, during photosynthesis, when the sun is there, when sunlight is there, the plant is performing photosynthesis during daytime, okay? So they are using this carbon dioxide. But at night, when there is no sunlight, they are not performing photosynthesis. What they are doing? Exchange of gases are still taking place. So they are utilizing oxygen and releasing carbon dioxide. Okay, so this is the reason why we say कि प्लांट के नीचे रात को बड़ी ट्रीज, जो बड़े बड़े ट्री रहते हैं, उनके नीचे सोना नहीं चाहिए. ओके, बिकॉज अगर हम उसके नीचे सो रहे हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं जो, उनके नीचे अगर हम सो रहे हैं तो वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. हम तो कर ही रहे हैं, है ना, वी तो ऑल टाइम प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. अब प्लांट्स के नीचे अगर हम सो रहे हैं, कोई बड़ा ट्री है उसके नीचे हम रात को सो रहे हैं, तो प्लांट भी रेस्पिरेशन कर रहा है रात को. They are also going to release carbon dioxide. So the person who is sleeping may feel suffocated. Okay, उनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है because of high level of carbon dioxide around him or her. Okay, so first point is plants and animals
respire and give out carbon dioxide. Okay, then here you can see also कार्बन साइकिल है, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल्स भी दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड प्लांट हमें ऑक्सीजन दे रहा है. ओके, देन सेकेंड पॉइंट, फॉर द बर्निंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर, जब भी हम प्लांट और एनिमल मैटर को बर्न करते हैं तो बच्चों क्या रिलीज होता है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर इंक्रीज पॉल्यूशन, राइट. पॉल्यूशन मतलब ही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज्यादा हो जा रही है और भी बहुत हार्मफुल गैसेस इंक्रीज हो जा रही है एटमॉस्फेयर में, बट कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू की जो अमाउंट है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेरिक एयर. सो दिस वॉज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ लेट्स सी few uses of carbon dioxide. They are used in carbonated beverages. Okay, जो ड्रिंक्स रहती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल. ओके, कोई सी भी कंपनी की हो कोल्ड ड्रिंक्स हैं जिसमें कार्बोनेटेड है, ओके, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है, जिसमें ये सोडा फोम बनता है. ओके, सो दे आर यूज्ड इन carbonated beverages. Then carbon dioxide is also used as fire extinguisher. आग बुझाने के लिए CO2 भी यूज होता है. Then obviously for photosynthesis plants यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तभी तो वो लोग खाना बना पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. Then comes the लाइफ जैकेट्स फॉर इन्फ्लेटिंग द लाइफ जैकेट्स. इनके अंदर हवा होती है ना, तभी तो हम पानी में फ्लोट करते हैं. ओके, सो फॉर लाइफ जैकेट इन्फ्लेट करने के लिए वी आर यूजिंग नो अदर गैस बट दी कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ विल टॉक अबाउट डस्ट एंड स्मोक. ठीक है, सिर्फ गैसेस नहीं प्रेजेंट है बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी जो एयर है उसमें सिर्फ गैसेस नहीं है, उसके अलावा बहुत सारा डस्ट और स्मोक भी प्रेजेंट है. ओके, तो ये कहाँ से आ रहा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. ओके, जब भी हम गाड़ी चला रहे हैं, फ्यूल का यूज कर रहे हैं ना, लकड़ी जला रहे हैं, जब भी कोई भी फ्यूल बर्न हो रहा है तब क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, धुआं आ रहा है ना. देन अनपेव्ड रोड्स, सीमेंटेड नहीं है तो क्या होगा, धूल उड़ेगी. देन एट द कंस्ट्रक्शन साइट, हियर यू कैन सी कंस्ट्रक्शन साइट में क्या हो रहा है, कितना धूल उड़ता है ना, तो डस्ट आता है. देन कम्स दी फायर्स, कहीं भी आग लगाया, कहीं फॉरेस्ट फायर हुआ है तो बहुत सारा स्मोक एयर में मिक्स हो जाता है. सो स्मोक इज नथिंग बट दे आर फ्यू गैसेस विद अ वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स. ओके, एकदम छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे तो उसको हम बोल दे रहे हैं स्मोक. ओके, गैस के साथ में डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल मिक्स हो गए तो उसको हमने कह दिया स्मोक. ओके, अभी आपने ये डस्ट पार्टिकल सिर्फ इजिली ऐसे आपको दिखेगा क्या एयर में डस्ट पार्टिकल्स है, हमने ये देखने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे. ओके, एक्सपेरिमेंट इन द सेंस आपने ये जरूर कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा. ओके, ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं आपको आज एक बार वापस बताती हूँ. सो यू वुड हैव सीन द डांसिंग डस्ट पार्टिकल्स, यस और नो? डू यू सी दिस इमेज? यू रिमेम्बर एनीथिंग? जब भी आप देखो कभी दोपहर के टाइम में जब बहुत धूप आ रही है और थोड़ा सा घर में विंडो में ओपनिंग रह रहा है, ठीक है, तो उस विंडो से या फिर उस डोर में जहाँ पे थोड़ा सा ओपनिंग है और वहां से लाइट फॉल हो रही है अंदर डार्क रूम में, तो इस लाइट की बीम में आपको बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखेंगे, क्लियरली विजिबल दिखेंगे. यस और नो? सो ये है हमारे डांसिंग डस्ट पार्टिकल्स. इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन एंड जस्ट टू मेक यू नो दैट द एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो. इवन दो हम ऐसे नहीं देख पाते हैं उनको, बट अगर धूप आ रही है, लाइट आ रही है, तो हम उसके अंदर उसको अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं. अभी ये डस्ट और स्मोक तो डेफिनेटली हमारे लिए अच्छा नहीं है. सो हमारे बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज दी नॉस्ट्रिल्स. हमारे नोज में जो नॉस्ट्रिल्स है ना, ओके, वी हैव टू नॉस्ट्रिल्स, टू ओपनिंग इन द नोज, राइट. उनके अंदर जो क्या है, फाइन हेयर है. ओके, छोटे छोटे हेयर है, यस. और उन हेयर के साथ साथ उसमें म्यूकस भी है. व्हाट इज म्यूकस? अ स्टिकी मटेरियल, चिपका है. ओके, स्टिकी मटेरियल भी है. तो वो क्या काम है उसका, कुछ यूज होगा. क्या यूज है? इट इज गोइंग टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स. अभी हवा में जो ये कचरा है, ओके, जो मोटा मोटा डस्ट है जो हमको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, जब भी हम अगर
इसको इनहेल कर रहे हैं, ऐसे हवा में अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो डस्ट पार्टिकल स्मोक है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जाए, उसके लिए जो ये नॉस्ट्रिल्स है उसमें जो ये फाइन हेयर और म्यूकस है वो क्या करेगा, उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा। ओके, क्योंकि म्यूकस कैसा है, स्टिकी है। सो इसकी वजह से द डस्ट पार्टिकल विल नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, और इवन अगर वो ट्राई करेगा, ज्यादा है, अगर वो अंदर घुसने का ट्राई कर रहा है तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्नीज करती है ना, छींक मार देती है। अगर सपोज नाक में कुछ गया तो इमीडिएटली हमारा रिस्पॉन्स क्या रहता है, स्नीजिंग, राइट। तो हमारी बॉडी में वो एंटर नहीं कर पाता है। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा बॉडी रोकता है डस्ट पार्टिकल को हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से। सो आई होप अभी तक जितना भी मैंने एयर क्या को कंपोजिशंस बताए आपको समझ में आया हो। वाटर वेपर हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इवन डस्ट एंड स्मोक। So now let's revise it one more time. The composition of air for nitrogen, it is 78%, oxygen is 20.9%, other gases is 0.17%, and if we particularly talk about carbon dioxide, it is hardly 0.03%. Okay? तो बच्चों अभी हमने बोला एयर में ऑक्सीजन है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर में बहुत सारी अदर गैसेस और डस्ट और स्मोक है। But what about water? So water also have oxygen. Okay, we know पानी के अंदर भी कुछ जानवर रह रहे हैं, पानी के अंदर भी कुछ पेड़ पौधे हैं, तो उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना रेस्पिरेशन के लिए, यस और नो। उन एनिमल्स को चाहिए, उन प्लांट्स को भी चाहिए होगा। So let's now talk about how these plants and animals are going to survive in water. So oxygen is also dissolved in water. So the animals or the aquatic plants, they use this dissolved oxygen in water. ये जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिजॉल्व ही हुई है। ओके, तो उसी को ये एनिमल्स और प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। सो ऐसा नहीं है कि जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। वी हैव सेड दिस दैट लिविंग बीइंग्स नीड ऑक्सीजन, यस और नो। उनको ऑक्सीजन चाहिए ही। सो इनके लिए भी वो वैलिड है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन यूज करते हैं दैट इज डिजॉल्व इन वाटर। नाउ लेट्स डू सम स्मॉल एक्टिविटी टू फाइंड आउट कि सच में पानी में, वाटर में हमारा ऑक्सीजन डिजॉल्व है। दिस इज एक्टिविटी नंबर 1। यू टेक अ बोल ऑफ वाटर और उसको हीट कर लो। सो व्हेन बिफोर इट स्टार्ट बॉइलिंग, बॉयल भी नहीं हुआ, बॉयल मतलब एकदम बड़बड़ 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 ऐसे बबल्स आने लग जाएंगे उसमें, ठीक है। इवन बिफोर बॉइलिंग अगर वो थोड़ा सा भी गर्म होने लगेगा तो क्या आपको दिखेगा, यू कैन सी हियर, क्या दिख रहा है आपको बच्चों, you can see the air bubbles, right? So the air bubbles suggest that the air is present in water. Okay, air पानी के अंदर present है, तभी तो वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ओके, जैसे हमने उसे गर्म किया तो पानी में जो एयर डिजॉल्व है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। और ये कैसे समझ में आ रहा है, बाय लुकिंग एट दी एयर बबल्स। यस, सो ऑक्सीजन हमने बोल दिया एयर में भी है, पानी में भी एयर है। अभी हम देखेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी से कि क्या सॉइल में भी एयर है। सॉइल में एयर की क्या जरूरत है बच्चों, सॉइल में भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, यस और नो। कैसे, कौन कौन रहता है बताओ, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं। उनमें से जैसे कि आप बोल सकते हो अर्थवॉर्म है ना, फार्मर्स का फ्रेंड है ना, फार्मर का फ्रेंड कौन है, अर्थवॉर्म। तो वो लोग कैसे ब्रीथ करते होंगे बेटा, वो लोग तो सॉइल के अंदर रहते हैं, यस और नो। सो दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, दे ऑल्सो नीड ऑक्सीजन। सो सॉइल में भी एयर प्रेजेंट है, ये देखने के लिए हम ये एक्टिविटी करेंगे। हमने क्या लिया, मिट्टी ले ली, और मिट्टी को क्या करना है, अपने को एक ग्लास में डालना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास यूज करना है ताकि आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सको। तो हमने ले ली मिट्टी, और मिट्टी को हमने डाल दिया ग्लास में, लेकिन ग्लास में क्या था, पानी था। ओके, ग्लास में हमने क्या डाला, पानी। और पानी वाले ग्लास में जब हमने मिट्टी डाली
तो मिट्टी जैसे ही नीचे जा रही थी नीचे सेटल होएगी ना सैंड तो वी कैन सी air bubbles coming out. You can see here this in this image, right? So ये air bubbles क्या है? These air bubbles suggest that soil के अंदर भी क्या था? Air present था. तभी तो पानी में डालते ही वो air बाहर निकलने की कोशिश करने लग गई, ओके? और bubbles के फॉर्म में हमें दिखाई दे रही है. सो एयर कहाँ पे है? एवरीवेयर, है ना? हमारा आंसर आ गया ना, एवरीवेयर. एटमॉस्फेयर में तो है ही एयर, पानी में भी एयर है, सॉइल में भी एयर है, ओके? सो एयर इज एवरीवेयर. वी हैव सीन 2 एक्टिविटीज एंड वी हैव come to the conclusion that air is present everywhere. Now let's see how this oxygen is replaced in atmosphere. हम तो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, है ना? एनिमल्स यूज कर रहे हैं, इवन प्लांट्स भी जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं. सो हाउ दिस ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर? So when plants are performing photosynthesis, they are producing oxygen. तो क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ जा रही है ना. Then also plants consume oxygen when respiring. ये हमें पता ही है, ऑक्सीजन यूज भी करते हैं वो. अभी एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल भी यूज करते हैं. जब वो रेस्पिरेशन कर रहे तो ऑक्सीजन यूज करते हैं और क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. तो कभी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं. प्लांट्स कभी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं व्हेन रेस्पिरेशन, कभी कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं व्हेन डूइंग फोटोसिंथेसिस. तो इस तरीके से जो बैलेंस है बच्चों, ठीक है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और बाकी अदर गैसेस का जो बैलेंस है वो अच्छे से मेंटेन रहता है. आया समझ में? देन लेट्स सी व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ एयर. Okay, other than just respiration, thus only photosynthesis, उसके अलावा भी हवा का बहुत सारा uses है. So the first use other than respiration and photosynthesis is the windmill rotation. You know what is windmill? आपने देखा होगा when you are going to a native place, you would have seen it. Okay, ऐसे बड़े बड़े टावर में उसमें क्या है, ऐसे फैन की तरह you can see these shapes, right? So these are nothing but the windmill. एंड ये कैसे घूमते हैं? विद द हेल्प ऑफ, अच्छा अगर हवा चल रही है, विंड चल रही है, सो दे स्टार्ट रोटेटिंग एंड व्हेन दे रोटेट दे आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ऑल्सो हवा की वजह से ही जो सेलिंग याच रहती है, राइडर्स रहते हैं, पैराशूट्स, एरोप्लेन्स, ये सब इजिली मूव कर पाते हैं. ओके, देन ऑल्सो एयर हेल्प बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स टू फ्लाई, राइट? ऑल्सो हवा की वजह से जो सीड्स रहते हैं दे कैन बी डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस. जो लाइट सीड्स रहते हैं वो हवा से ही तो उड़ के जाते हैं ना. सो इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाटर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो बिना हवा के, बिना एयर के इवेपोरेशन भी नहीं हो पाएगा. ओके, सो वाटर साइकिल में जो एयर है, जो एयर के कंपोनेंट्स हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, सो वी हैव सीन अदर डिफरेंट यूजेस ऑफ एयर. सो दिस कंप्लीट द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6 NCERT, chapter number 11, air around us. I hope you have understood each and everything. Different composition of air, the percentage is very important कि कितना परसेंट में कौन सा एयर है उसे अच्छे से याद करना है. Then important question, another important question is the other uses of air, and the third important question in this chapter is how the balance between the air is maintained. Okay, the balance is maintained. So these are few important questions. I hope now you can answer these questions. And before I leave, I request each and every one of you, please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Keep studying, keep revising. Thank you. Bye bye.